host for the day, Vikas Mahada, and I welcome you all to our open mic live session, Avas, presented by My Story Trust. But before starting our today's session, I would like to thank you all for giving such a great response on our previous session, which was about the topic child abuse. And अगर अभी तक आपने उस लाइव सेशन को नहीं देखा है, then you can visit our Facebook page, which is by the name of My Story. वहां पे जाइए ना, आपको हमारे प्रीवियस लाइव स्ट्रीम्स के अंदर उसकी वीडियो मिल जाएगी. Go and like it and share it. And now, like my co-anchor Tushar Malhotra, to come upon So and hello, introduce you all about what my story is. so hello, good evening to one and all present here, and we are live with our new session that is Avas. So basically, My Story is a platform where every story is heard, every story matters, where we try to give those stories a better climax, and if not climax, then we go for a better interval. Unheard is important to us, so we cherish those who share their pain with us and try to ease their pain in every possible way. All right, so thanks a lot Tushar for introducing everyone about what my story is. तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सुसाइड, द अनस्पोकन वर्ड्स. एंड द अनस्पोकन वर्ड्स को हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि एज द नेम सजेस्ट ये वर्ड्स अनस्पोकन या दबे ही रह जाते हैं. आप लोगों को मैं एक थोड़ा स्टैटिस्टिकल डाटा बताता हूँ. दुनिया में हर साल करीब 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिसका 17% यानी कि 1,35,000 के अराउंड लोग उसमें से इंडिया के होते हैं. तो क्यों इंडिया में इतने सुसाइडल केसेस हो रहे हैं? उसी के साथ अभी कुछ दिन पहले हमारे जाने माने बॉलीवुड के कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया. उसके बाद से भारतवर्ष के हर एक इंसान के अंदर यही एक क्वेश्चन चल रहा है कि भाई क्यों इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्यों हमारी एक्टर फ्रेटर्निटी जो है उस लोग वहां के इतने लोग सुसाइड केसेस कर रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है? बहुत सवाल है हम लोग के दिमाग में. तो आज हमारे साथ कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि एजुकेशन, साइकोलॉजी, हर फील्ड से रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू वेलकम यू ऑल to our webinar for My Story. We are pleased to have you here. All right, so now I'd like to start to introduce our first guest for the day. So basically, our first guest is Miss Manisha Panchal. Our first guest is Miss Manisha Panchal. She is a researcher, filmmaker, and a former reporter with TOI. Now, working as an assistant professor with Technion Institute of Advanced Studies. Recently, her research paper made it to the winners list under Public Relations Society of India. All right, we are pleased to have you here, ma'am. Thanks a lot for joining us. It's great being here. It's great being here, guys. It's such a great initiative to talk about things which are less spoken or somewhere, if we say, not at all spoken about. Thanks for having me here, guys. All right, ma'am. So next upon we have with us Miss Jyoti Kanda. Okay, so she is a counseling psychologist and licensed special educator. She has worked with an NGO to help differently able children, and she has also done a research on mental health of intellectually disabled children. She has a teaching experience of more than 6 years, so we are pleased to have you here, ma'am. Thanks a lot for joining us. Thank you so much, Vikas. Thank you so much. Thank you so much for inviting me for such a good cause. All So right, now we have Tushar, Dr. Sanchita Ghatak. Our guest Sanchita Ghatak is a doctorate in psychology and PG Excuse me. in computer science. Excuse me, it's not Ghatak, it's Ghatak. okay. Ghatak, I'm really sorry, ma'am. I'm really sorry. Ghatak So we movie are बन sorry. जाती है. I'm sorry. Sanchita Ghatak, I'm really sorry for that. So she is doctorate in psychology and PG in computer science. She is a certified digital marketing expert, certified data analyst expert, and she is also a Government of India empaneled certified POSH trainer and panelist in various media channels. We are so pleased to have you, ma'am, here. Thank you so much for Thank being you so here. much for inviting me here. It's a pleasure being with you all. It's an honor for us, ma'am. All right, so next upon we have with us Mr. Satyendra Kumar Singh. Okay, so he is a career coach, a motivational speaker, has authored books on varied topics, and a columnist too. He is a certified global career counselor by University of California, Los Angeles, and also an expert panelist on various media channels. All right, sir, we are pleased to have you here. Thanks a lot for joining us for today, and it's going to be an amazing session with all of you. Very good evening, and the pleasure is always mutual. So it's really, a very wonderful and a memorable moment having all the panelists like these and sharing my views with the audience across. Thank you so much. All right, so I think it's the time to start with the topic for today, which I already told you. It's about suicide, the unspoken words. All right, so my first question is from Miss Manisha, ma'am.
All in one, so I've seen teenagers who think if they are going through breakups or relationship problems, it's important to put a cut on their wrist to depict that they are hurt. What is this according to you? An act of attention, foolishness, or they need sympathy or any other reason? Well, that's a very well asked question, very valid question. Because since it's become a part of our society, I would like to start it from my point of view. As I have been introduced as a filmmaker, so I can't leave that portion apart or away. As you must have seen, things that we replicate or things that we do are actually somewhere coming from our conditioning, which we have been seeing all our lives, which we have been noticing since we were a child. So the movies, the cinema aspect is one important factor if we talk about what exactly they follow at the end, right? So coming it from a be it cinema, be it your peer group, be it your company, be it anything related to that. So you tend to replicate things which you have been seeing all your life since you were a child. And of course, this example, very specifically slitting the wrist, is one utmost factor which I have read a lot of article about. It's not just coming from the college, or it's just not coming from the even the school kids. The very Yes, ma'am. young, from very young age, they tend to follow such or get involved into such all these activities because of the factor they have been noticing that this is something through which we can show, or through which we can display that we are hurt, right? Basically what they're looking for is they want anybody or the other person to realize that they're actually hurt. And we live in a society, if we are not hurt physically or apparently, they don't accept it to be the injury if it's not visible. So mental health is something which is not tangible according to the society. And until and unless they accept it as an injury, the people who are suffering does think that they do not get attention until and unless they hurt themselves physically. And that's how they take it upon. They take it otherwise, or they take it into a way where they can hurt themselves physically so that it's visible to the society, and it's easier for them to accept that yes, it is. And if we transform, I absolutely understand that it's not a process of overnight कि हम एकदम से जागरूक हो सकते हैं, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है. हमने शुरू से ही, वो बचपन से ही वो टीवी सीरियल, वो डेली सोप्स, वो सिनेमा देखा है जहां पर कोई बीट लवर, बीट anybody who wants to show or showcase that they're hurt and they love them to the utmost of their heart. What they do, they hurt themselves. Have you ever seen those films showcasing our heroes just engraving the name of the heroine on their wrist, True, ma'am. slitting it? I think So what else? cinema is playing kind of negative role here. Absolutely. It's actually so it's been influencing. conditioned in our brains. It's been conditioned in Yes, our ma'am. brains. If you see, they're showing it to be a heroic moment, which All should right. not be. They should smash it right then and there, so that our kids know it then and there that no, it's wrong. Hurting, abusing yourself physically is wrong. Is not heroic at all. If you choose to showcase this particular action to be something as being heroic, people will follow it, to follow that particular image, or to get that acceptance from our heroine, isn't it? The heroine ma'am. tend to just say a yes after the hero gets hurt. So isn't this the Totally. culture that we are following since a Yes, ma'am. child? Absolutely. So that's what it is. That's what it is. When we smash all these things right from the beginning, only then we can bring about a change. Because we can't tell a small kid to just this is wrong, this is right. Yes, you may tell it. Be it your parents, they can tell you. But when you move outside, when you move in an outer world where the guidance doesn't exist, but a provocation does. So that's how you end up like abusing you physically. So I think if you talk about how to guide them or how to tell them that it's wrong, it's about us, the people who are always around you, be it your friends, be it your siblings, be it anybody. Since India is a country where like 15% than any other country, we have more cases of physical mental health, and we do not consider it to be the injury because it's not tangible, or since it's not something which we can see. तो हम उस चीज को Totally. मानते नहीं है जब तक हम उस चीज को देखते नहीं है. हमें उस इंसान का जो एक पेन है, जो एक सफरेज है, वो एक ड्रामा लगता है.
we tend to call them as lunatics. उनको टैग कर दिया जाता है. So that tagging itself is something which tells them कि अगर मैं किसी के सामने ये accept कर लूंगा या कर लूंगी, तो I might be tagged as a lunatic. That fear we need to understand, विकास, कि जब तक उस fear और उस pressure से वो इंसान बाहर नहीं आएगा, accept नहीं करेगा, they cannot get cured for that. Until and unless a person accepts themselves to be the patient, that part, Vikas. I guess that confidence should be there in our society. It should be evidently accepted as a disease. It is a disease. Be it tangible or non-tangible, it is a disease. First, we need Totally to agree. have an acceptance. And only then we can move towards the solution, I guess. True, ma'am. All right. So I totally agree with you, and I think our audience too. Okay. So, but before asking to our other judges, we all have prepared a video for you. So I would like to request Gandhi to play it on the stage. All right. So we have prepared this video. मैं एक चीज जानना चाहूंगा इस वीडियो को देख के. मेरे को इतना ज्यादा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ मेरे दिमाग में. सबसे पहले क्या चीज आई, शायद हर एक के दिमाग में यही आई होगी, सुशांत सिंह राजपूत. क्यों सुसाइड एक इतना बड़ा टॉपिक बन गया सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, और उससे पहले इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही थी? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी किसी एक इन्फ्लुएंशियल बंदे को देख के इन्फ्लुएंस होती है, रादर अपने साथ वालों को देख के. मैं इसके ऊपर आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूँ. Any of you guys can speak up on this? I just want just a little point that I want to raise here. Rest Alright. the stages with some people who are way more experienced than me. Of course, I'll be No. just a point that came into see, Vikas. Before the storm, we need a point where we all break out. And I guess that Sushant incident is just a breakout. It's been happening since ever. It's not the first case, Totally. one of a kind, isn't it? So it was just a breakout where we just could not tolerate it, where it just went or ended with the word enough. That was the case, I guess. It's not one of a kind case. There has been many, there will be many, there have already been many. We have been following the stories, isn't it? We have been seeing this since I was a child, and I got to hear about this director who was involved in making, I would not name it by now because the case has not been really enshrined enough to let me name about it, but that director wanted to work for the social cause. He wanted to work on the documentary or a harsh reality format, and his movies were smashed. They were not even released yet. So it's happening not on the level of be it actor or director or any musician. So they would not come up. They would not really shine up until and unless they do have contacts or they do have somebody as a godfather, as we call it. Now I have a question here, ma'am. एक question, मैम one question. That आपने जैसे बताया मैम, वो बात एकदम करेक्ट है. उसके अंदर मैम बेसिकली एक लाइन है, एक फ्रेज है कि empathy should come before sympathy. जब हमारे साथ, हमारे अपनों के साथ, हमारे नोन के साथ कुछ ऐसा होता है, उसके बाद ही हमें कुछ ऐसी रियलाइजेशन क्यों होती है कि हाँ कुछ ऐसे सिनेरियोस चल रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो हम उसके ऊपर कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं. तो मैम इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट्स या क्या बताना चाहते हैं आप? See, it's a vast field, Tushar. Empathy, if you talk about, see, there has to be a line which I would say, if all of you have heard of, like regret is greater than the gratitude, isn't it? Exactly. We have already been hearing it a lot from a lot of places. So that is a human behavior. You don't value it until it's gone out of your hand, isn't it? We tend to value it more if it's distant. That's what human behavior is. But we should by now stop calling it a human behavior or generalize the statement to such an extent where we
can't reach out to those people, or we just ask them to reach out, that oh, he should have reached out to us, or we would have talked to him. This is the most common reaction that everybody is like flowing on the social, be it social media or be it their own social this status thing. So I guess we need to, it's high time that we do realize that yes, sympathy is a step beside, but empathy is something that we should take upon. Empathy is something, Exactly. if I name it correct, it was Daniel Lerner who came up with this approach, empathy. And he came up with this approach when he talked about a society, that if a society wants to develop, it was a 1960s concept. He said it since then, कि if you need to develop, you must empathize. To grow, you must empathize, because sympathy is something that you feel for somebody, and empathy is like you put yourself into somebody else's shoes. You make yourself feel that how that particular person must be feeling in this particular situation. So that's what it is. It's very important for us to realize that whatever happening around us, it's not just one person suffering. It's about the structure, the social structure that we have created, that the other person can't even come up to us and accept the fact that yes, they are mentally traumatized, yes, they are mentally suffering, because you be it a joke or be it a sarcasm, you will call or you will tag that person as pagal, lunatic, drama, or something like that. These are the words that we come up, and that is the thing that is making India to be the most depressed country, said by WHO. Exactly. Totally, ma'am. We totally agree with your point. As the Okay. most depressed country. Sushant, I want to add on to this. Sure, ma'am. Sure. See, when we are talking about empathy, actually, it requires a lot of efforts also. Maybe you can say professional or unprofessional also. Both the efforts are important. And when we say sympathy, it's basically only to console. And if somebody is following empathy with any of the client and even with any individual also, when we are through interaction also, empathy is very, very important. So it should be like action oriented, we can say. Empathy is really very action oriented. If we see sympathy, it's just for the console process. And if we see empathy, it should be like solution oriented. It should be proper and focused. It should be guidance supported. So things should be there when we are talking about empathy. All these pointers should be there, because when we are just saying empathy and empathy, people know about empathy and sympathy, the difference between that, but they really don't know how to follow the tactics and techniques of empathy. So this is how I think we all can, since we are creating awareness here, so discussing about all those techniques and very, very small tips can also be very good. I mean, just to add on to the ma'am's topic. Sure, All right, ma'am. ma'am. Sure. Okay, so my next question is from. Absolutely. All just right. wish to put in one word. I just saw one question Sure, ma'am. कि हम लोग सुशांत सिंह के बारे में हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, पर फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे. Totally, that's Yes, my a point. very pertinent question. Yes, the thing is, Sushant Singh was quite a famous person in the sense कि Sushant Singh was an actor. और ये न्यूज़ जब आया, it was round about in the afternoon that it broke, and it was in social media. तो आजकल जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आता है, that is more highlighted. रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले एक केस आया जहाँ पे कि लेडी विथ हर डॉटर केम अप टू लखनऊ एंड दे ट्राइड टू बर्न देमसेल्फ आउट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, उनके इश्यूज थे. तो ये चीज़ सोशल मीडिया में आया तो हमने इसके बारे में बात किया. जस्ट वांटिंग टू आस्क हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली सी कि कितने फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं. सुसाइड करने के उनके पास रीजंस हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे द डेट्स, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द इश्यूज. दूसरी चीज़ ये कि फार्मर्स जहाँ पे रह रहे हैं इन द रूरल एरियाज, वहाँ पे शायद उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है. यहाँ पे अर्बन एरियाज में वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव थेरेपिस्ट, वी हैव काउंसलर्स, और फार्मर्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुके होते हैं कि उनको अपना पेमेंट करना है, घर को देखना है, फैमिली को देखना है, तो इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि उनके पास कहने के लिए बस एक ही रास्ता मिलता है, दैट आई शुड किल माई सेल्फ. उसके बाद उनके बारे में और उनके फैमिली के साथ क्या हो रहा है वो शायद सोचते नहीं है. तो
तो अगर ऐसे कुछ रूरल एरियाज में भी हमारे यूनिट्स बन जाए जहाँ पे कि हम कभी बीच बीच में जाके या फिर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, द वे यू पीपल आर गाइज आर डूइंग, इट्स फैंटास्टिक। ऐसा कुछ इनिशिएटिव हम फार्मर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए अगर हम ऐसा कुछ करें जिनको कि हम बताएं कि सुसाइड इज नॉट द एम, सुसाइड इज नॉट द एम and goal. It's a weak person's soul सोल्यूशन। उससे लाइफ आगे बढ़ती नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं रहोगे आगे आप सोल्यूशन कहाँ से निकालोगे? समथिंग रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एक्चुअली शुड बी टेकन अप इन द रूरल एरियाज एज वेल। कुछ उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोग ये भी प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर सिंस इट्स ऑन फेसबुक, यस इट हैज़ अ वेरी वाइड रीच, बट डू यू थिंक द फार्मर्स आर लुकिंग एट दिस प्रोग्राम? हम मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सुसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितने वो लोग इस चीज को सुन पा रहे हैं जो जिनको कि एक्चुअल में रियल में ये सुनाना चाहे? तो दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड। I would like to add up may I on have a this. question? मेरा क्वेश्चन आता है May I एक have question? कि हाँ हेलो, alright sir, you हाँ speak first. या प्लीज। okay हाँ तो the point raised by Dr. Sanjay is very very valid actually, but since I'm a political analyst also on the media channels and apart from the career counselor, so we have to analyze the whole of the situation in multiple aspects, right? Because once we talk about farmers, जब हम किसानों की बात करते हैं, so they are actually captured in a very vicious cycle, and the kind of society that has evolved over a period of time. Like earlier, we used to have a joint family kind of thing, and now means I also belong to a farmer's family, and now the things have happened in a different way. What does it mean? It means like पहले लोग जो थे वो अपने खेती किसानी करते थे और उसके परिवार के सारे लोग उसके साथ सहयोग करते थे, एंड दे यूज टू मेक ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ इट. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड इज कि लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ा बिकॉज इट वाज नॉट अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ अर्निंग्स फॉर देम. Because 6 महीना 4 महीना you are just investing the money, the efforts, then you are dependent upon the weather conditions and everything. So what happened Totally. कि वहाँ पे they were not able to make the ROI, return on investment, that they actually put in. So उसकी जो समस्या आने लगी वो एक बहुत बड़ी है. और अगर आप किसानी की वास्तव में बात करें, इफ वी आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट द पेमेंट दैट वी हैव टू डू टू द नेचर. आप पानी की इफरात में खर्चे कर देते हैं जिसका पैसा आप नेचर को नहीं देते हैं, बट यू परचेज दी यूरिया एंड अदर थिंग्स, पेस्टिसाइड्स. व्हाट वी हैव डन है हमने ट्रेडिशनल से उठा के अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्यूबवेल पे और फिर हमने ट्रैक्टर्स पे और फिर यूरिया पे, मतलब अपने खर्चों को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं. और उसके बाद में फिर आपके पास MSP जो आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस है जो गवर्नमेंट से वहाँ पे मिलता है, और फिर आप क्या करते हैं वहाँ से किसान जो है वो बाहर तक ले जाके पहुँचा नहीं पाते हैं. तो हमें उन रूट कॉजेज को पकड़ना है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी समझना है, हमें सोशल फैक्टर्स को भी समझना है. और वहाँ पे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो शाम को बैठ के लोग चाय पानी पीते थे, आज की तारीख में दे आर नॉट डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग. इंक्लूडिंग शहरों की भी बात हम करते हैं, शहरों में भी हम ये देखते हैं कि द स्टूडेंट्स, द यंग गाइज हु आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट. अभी नोएडा का केस कुछ साल पहले ही अभी आया था कि द गाय वो यमुना पे अपनी बिल्कुल हंक काइंड ऑफ बाइक को खड़ी करता है जिसकी कीमत ही 2 लाख के ऊपर की थी. लैपटॉप था, बेस्ट ऑफ द मोबाइल्स ही हैड, उसके अलावा 4-5 क्रेडिट कार्ड्स भी थे, सब कुछ उसके पास में था. बस वो वहाँ पे गया, गाड़ी खड़ी करी, यहीं जंप इनटू द यमुना. कारण क्या है कि अगर आप फिजिकल एसेट्स की बात करें तो फिजिकल एसेट्स वेरी वेरी मच अवेलेबल विद ऑल द पीपल. बट होता क्या कि इन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ज्योति मैम इज अ साइकोलॉजिस्ट, वो भी वो इसको समझते होंगे. यहाँ पे क्या है कि जो एक होप का पार्ट है कि हम ये अपनी रूटीन लाइफ, वाई वी आर लीडिंग टू दीज काइंड ऑफ लाइफ, हम अपने पास सेल्फ टाइम कितना दे रहे हैं, वाई वी आर नॉट एनालाइजिंग व्हाट इज अ टास्क ऑफ द डे, हमारे पास आज नया करने के लिए क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ. हम उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप करते ही नहीं है. सो वी आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट. तो उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है. लाइफ इज अ सिस्टम एंड वी इट हैज़ टू बी अ सिस्टमेटिक पैटर्न काइंड ऑफ थिंग. तो उसमें अगर आप अपने स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते रहते हैं तो डेफिनेटली आप, होता क्या है कि वी आर लिविंग द लाइफ फॉर अदर्स. एक्चुअली द सोशल मीडिया दैट यू आर देयर इन, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप ट्विटर पे जाते हैं, आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, we are just trying to portray ourselves, we are just trying to give a very gala feeling about ourselves to the people.
या कुछ ऐसी फीलिंग कि लोगों का अटेंशन हम सीख करना चाहते हैं, बट आर वी रियली डूइंग समथिंग that going is going to give you your experience that you are loving yourself? आर यू ट्रीटिंग योर सेल्फ इन दैट वे? आप दुनिया को तो दिखा रहे हो कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सारे एसेट्स हैं, सारे गैजेट्स हैं, मैं बहुत अच्छे कमेंट्स करता हूँ, वगैरह वगैरह, जितना भी आपका टिकटॉक वीडियो बने या जो भी बने, ये ऑल सुपरफिशियल काइंड ऑफ थिंग। हम ये सारे करने के बाद में केवल केवल एक एस्पेक्ट को लेके चल रहे होते हैं कि सोशल गैदरिंग पे या सोशल मीडिया पे हम अपने आप को प्रमोट करते हैं, बट हम अपने आप के साथ एक बहुत अच्छा इंसाफ नहीं करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, मतलब अगर कभी भी कोई भी इस तरह का डिप्रेसिव नोट आपके पास में आ रहा हो, या जैसे जब मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग उससे संपर्क करते हैं, बच्चे भी हैं और सीनियर लोग भी हैं, तो उनका सिंपल सा एक मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप ये बता कि आज की तारीख में आपने अपने आप को लेटर से कि आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं अच्छा काम किया, तो आई एम गोइंग टू गिव अ ट्रीट टू माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक स्पेशल कॉफ़ी बना के लेके आऊँगा, या आज मैं 2 रसगुल्ले खाने चले जाऊँगा, अपने आप के लिए करने जाऊँगा, नो बडी इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इनटू इट। सो आर वी रियली डूइंग इट? तो ऐसे टिप्स हैं। फिर उसके बाद यू हैव टू टेक अ ब्रेक, यू हैव टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और मोर मिनट्स ऑफ ब्रेक, जहाँ पर कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, वेदर यू टेक अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और यू गोइंग टू वॉक और डूइंग समथिंग, यू टॉक टू योरसेल्फ। तो ये जो ब्रेक है, समवेयर और दी अदर वी आर नॉट टेकिंग एक्चुअली। हम बस सुबह उठते हैं, अपना वो व्हाट्सएप किया, ब्रश किया, सोशल मीडिया किया, ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए तैयार हो गए, वी डिड आवर ऑल थिंग्स, फिर थोड़ा सोशल मीडिया किया, यही सारे काम करते करते शाम को हम आ जाते हैं मंथ एंड पे, वी गेट द सैलरी एंड वी जस्ट स्पेंड दैट। सो आर वी रियली डूइंग समथिंग मीनिंगफुल? ज़्यादातर लोग ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो मीनिंगफुल कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सुसाइड की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, सुसाइड में एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हम सुसाइड की बात करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास सारे रास्ते ख़त्म हो रहे हैं या हम रिवेंज के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सुशांत के केस में जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि उसके पास अच्छा खासा पैसा था, फिल्म के प्रोजेक्ट्स भी थे, बट अल्टीमेटली उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था वेयर ही कुड गो एंड कन्फाइड, क्योंकि उसके पास जो पीछे से जो वहाँ के बने हुए टाइकून्स हैं, जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो उसको अच्छे ब्रेक नहीं दे रहे थे या उसके करियर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो ही वॉज इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि उसके पास फिल्म्स नहीं थे या पैसा नहीं था। फार्मर्स की आज की तारीख में जब हम सुसाइड की बात करते हैं, तो फार्मर्स का एक बड़ा अच्छा स्केप गोट बन चुका है, जहाँ पर कि वो जानते हैं कि अगर मैं सुसाइड कर लूँगा तो मेरे फैमिली वाले को 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट उसके अनाउंसमेंट करती है। सो वी आर मूविंग इन अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल। मतलब ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो हमें लगता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, मैं एक नटशल में सिंगल सा स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा, अवॉइड एज मच एज मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, जितना भी आपके पास पॉसिबल है, जितना आप मीडिया और सोशल मीडिया से हटके रहेंगे और मेन स्ट्रीम में जो आपके पास अनबायस्ड न्यूज चैनल्स हैं, मे बी दूरदर्शन और समथिंग और नेशनल मीडिया, उस तरह की मीडिया पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ से आपको इतने ज़्यादा स्कूप न्यूज़ नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन ऑफ न्यूज़ नहीं होती है। Sir, I'm आप sorry I'm आपको stopping वन here, चीज but I would like वो to add something here. Hello, hello. हाँ Yeah, sir, I would प्लीज like to प्लीज add something here. प्लीज प्लीज मेरे दिमाग में आपने जब ये बात कही मीडिया चैनल्स के बारे में एंड फार्मर्स के बारे में, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्यों किसी फार्मर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी सिंगल एक बॉलीवुड स्टार को? 100 फार्मर्स, 1000 फार्मर्स मिल जाए, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी अकेली एक बॉलीवुड स्टार को मिल गई। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि हाइप क्यों नहीं मिलती फार्मर्स वाले केस वाली? कोई भी मेजर्स या प्रिवेंशन कब लिए जाते हैं जब किसी चीज की हाइप बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीम पेजेस हो गए, न्यूज चैनल्स हो गए, इवन सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, सबको टीआरपी कब मिलेगी? किसी न्यूज बॉलीवुड स्टार को दिखाने में या किसी फार्मर को दिखाने में? ऑब्वियस एवरीवन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मनी। मेरे को कहीं ना कहीं ये फैक्ट लगता है कि हर एक को बस टीआरपी, हर एक को फेम, हर एक उस चीज की तरफ भागना चाह रहा है, जिस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ पे कोई देख ही नहीं रहा ढंग से। यही अगर इतनी इंपॉर्टेंस सारे लोग मिलके आए, चलो आज हम 6 बंदे करते हैं, इमेजिन करो हमारी ये चीज आगे बढ़ती है, आगे मिलके 6000 बंदे मिलके ये चीज बोले, आई थिंक गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक एक्शन फॉर दिस। क्योंकि इट्स लाइक हम सबका एक सिंगल स्टेप ही उस एक कम्युनिटी की तरफ सपोर्ट देगा। सो आई थिंक ये जितने भी मीम पेजेस होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, सबको अनबायस्ड बन के जो एक्चुअल टॉपिक्स है जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, रादर देन शोकेसिंग अ बॉलीवुड स्टार एवरी अनदर डे। क्यों हमारे दिमाग में इतना ज्यादा घुस जाए? ऑलराइट, सो बिल्कुल सो यू आपकी कैन बात कंटिन्यू। सही है। एंड द पॉइंट इज लाइक,
हाँ हाँ, तो जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा फार्मर्स, ये दोनों का एकदम से मीडिया पे हाइप क्यों होता है? हैड बिल्कुल इट बीन द केस, अगर यही कोई फार्मर सुसाइड करे एंड जस्ट महीना 2 महीना पहले किसी भी बड़े इलेक्शन से पहले ये सुसाइड का केस हो जाए, आप देखिए मीडिया कितनी टीआरपी उसको देती है। इट इज बिल्कुल सही। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस न्यूज़ को कितना आप उससे बेनिफिट निकाल के आ सकते हैं। ये सारे किसानों की समस्या जिस दिन खत्म हो जाएंगी, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी सर। जिस दिन ये चोरों चिक्के खत्म हो जाएंगे, पुलिस के काम खत्म हो जाएंगे। इट इज अ वेरी मतलब बड़ा अजीब सा सिनेरियो हमारे पास होना है अभी। अभी देखिए मध्य हमने प्रदेश कोरोना में भी केसेस केस हुआ है, पर जैसे ही फार्मर। हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ऐसे केसेस बहुत हाँ, होते रहते हैं और ये हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की जाती है। जब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में ये बात होती है, फिर वो उठता है, फिर वो मीडिया मैनेजमेंट हो जाती है, फिर चीज़ें सबसाइड कर जाती हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है, आप उसको रूटीन प्रोसेस में देखें। हाँ, बीच-बीच में एक हिकअप्स आपको दिखते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड अप्स एंड डाउन्स बिकॉज़ ऑफ दैट। लोग एकदम से हाइलाइट मीडिया से बाहर चला जाता है। सुसाइड का एक केस आपने बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली में भी कुछ सालों पहले देखा था। तो वो रैली चल रही थी और पीछे सुसाइड हो रहा था, फार्मर का ही सुसाइड हो रहा था। तो इट इज़ अ वेरी ये एक सिनेरियो है और इसको आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना इसको आप टीआरपी के थ्रू ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी लेंगे, वो अपना इससे माइलस्टोन सेट कर लेंगे। किसान का है कि वहाँ पे एक लोकल लेवल पे उसको एक मिल जाएगा, उसके फैमिली वालों को एक कंपनसेशन मिल जाता है, मीडिया को एक अच्छा स्कूप न्यूज़ मिल जाता है। सारी चीज़ें सब अपने अपनी जगह पे गाला पोजीशन पे बैठ गए हैं एंड कहीं ना कहीं हम बहुत ही डर्टी गेम खेल रहे होते हैं किसी की लाश के ऊपर में। तो ट्रू। यही चीज़ The है, अब उसको question जितना from देखते जाए नहीं Harshin. देखते जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी हैव टू टॉक अबाउट एक्चुअली सॉल्यूशन। बिकॉज उसके ऊपर कोई फुल्ली। काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे चाइल्ड अब्यूजर्स के केसेस भी देखे। चाइल्ड अब्यूज पे बात ज़्यादा हो ही नहीं पाती है क्योंकि वो वोट बैंक है ही नहीं ज़्यादा उनका। And तो जब our उससे आपको फायदा last ही नहीं होता, आप उसके topic ऊपर for कहाँ बात our करेंगे। previous topic for the webinar was child abuse only. Alright, so जिसने वो नहीं देखा, you मार्जिन can से visit our Facebook page by the name of My Story. आप वहाँ पे देख सकते हैं, child abuse के ऊपर ये पूरा webinar है. And ma'am, you were saying something. Yeah, there was a question from Miss Harshin Kaur. She was asking ki, uh, even if initiatives and programs are taken in rural settings, do you believe that people in those settings who are rigid in their mental framework with just a purpose of earning meals a day would take any interest in those programs? Because awareness is a setting is controlled by a number of factors, most important being pattern of life, flexibility to change, and mental framework. Yes, to one point it is true कि वहाँ पे शायद like when we are talking about rural settings, people are more concerned about earning two meals a day. uh, if we look at that point also, they are happier than us. उनके पास मीन्स एंड एंड्स बहुत कम होते हैं. विथ वॉट एवर मीन्स एंड एंड्स दे हैव, दे आर प्रोबेबली द हैप्पीएस्ट. पर उसके बाद भी जब उनके यहाँ सुइसाइड्स होते हैं, स्पेशली द फार्मर्स, वो इसलिए होता है जैसे कि मिस्टर सत्येंद्र सिंह ने अभी कहा कि उनके पास कोई बताने के लिए नहीं होता है. सुसाइड में लाइक ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं होता है कि आज सुबह उठे और बाय आफ्टरनून यू डिसाइड टू किल योरसेल्फ एंड देन यू जंप फ्रॉम समवेयर और लीड सम पर्सन और सो एंड देन कमिट सुसाइड. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. धीरे धीरे उस आदमी के अंदर इतना ज़्यादा टेम्पटेशन हो जाता है और उस आदमी के अंदर पर्सनल हार्म के लिए इतना ज़्यादा अर्ज हो जाता है कि इट acts as a stimulus. And at that point of time, when he or she is planning to commit a suicide, उस टाइम पे उसको रोक लिया जाए किसी तरह से. मैम वुड एग्री, एनएलपी में भी हम यही कहते हैं कि उस टाइम पे खींच के अगर उसको झापड़ मार दिया जाए या कुछ ऐसे कर दिया जाए कि वो इम्पेटस या जो इम्पल्स है वो वहाँ पे रुक जाए, तो सुसाइड डजंट हैपन. उसके बाद हम उसको थेरेपीज दे सकते हैं और हम उसको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं. नाउ रिलेटेड टू द फार्मर्स, उनका एक वे ऑफ लिविंग अलग होता है दैन द अर्बन पीपल. अगर हम उनके अंदर अवेयरनेस लाते हैं तो हु सेज दैट अवेयरनेस गांव में नहीं आ पाता है. इफ वी टॉक अबाउट द कोरोना इशू, you would see less aware people are there in the urban areas than in rural. How many of you like we have heard कि rural sector में कोरोना ने affect कर दिया है? If we look, मेरा भी जो घर है, like my in-laws, they are staying in a rural area
And every day whenever I talk with my mother-in-law, she says कि बेटा यहाँ पे तो कोरोना का कुछ नाम पता नहीं है, because people are so strict. वो खुद अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं, दे फॉलो ऑल द हाइजीन्स. कोई भी बाहर से आ रहा है वो अपने आप को 14 दिन के लिए बिल्कुल सोसाइटी से अलग करके रख रहा है. सो दैट इज हाउ कोरोना इज नॉट स्प्रेडिंग देयर, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस लेवल आ गया है. और उसी तरह से नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड को भी प्रिवेंट करने के लिए हमें अवेयरनेस लेवल किसी दूसरे तरह से करना पड़ेगा. When we are talking about family planning, did we not succeed in doing that in rural areas? When we are talking about girls' education, did we not succeed in doing that in rural areas? There are several ways. Like what my experience says, the best way is to show them small films in the evening when they are returning home. उसके पास उस वक्त उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है. हमारे पास तो बहुत इश्यूज होते हैं. उनके पास दे हैव अ वेरी सेटल्ड एंड वेरी सॉर्टेड आउट लाइफ. उस वक्त उनको दिखाओ. You can go about for nukkad nataks. That is a wonderful tool and instrument to go about. तो इसी तरह से awareness level बिल्कुल आ सकता है rural areas में, and we can definitely work on it. And the thing is, there must be some people around who can listen to the farmers, who can actually hear them. Not hear, actually they should listen to the farmers, their issues, and that is how we can actually stop farmer suicide. Gवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, क्या स्टेप नहीं लिया, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, व्हाट आर वी डूइंग टू promote it is the main question. So that's what I wanted to ask. Tell to other panelists whatever they were All saying. right, Tushar, you can ask a question. विकास, जैसे अभी हम लोग सबको पता है कि हम लोग टिकटॉक और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हम लोग शायद फार्मर्स हैं या जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो भी ऐप्स यूज़ करते हैं. आई थिंक हमारे एट कम्युनिटी लेवल पे हम इस तरीके के ऐप्स हम लॉन्च कर सकते हैं, हम बना सकते हैं जिसके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स या कुछ कोटेशंस या कुछ आर्टिकल्स हों, सो दैट अगर एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग भी उस ऐप को डाउनलोड करता है तो आई थिंक उससे उसको काफ़ी अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि जो लोग टिकटॉक चला सकते हैं आई थिंक वही स्मार्टफोन में वो ऐप भी चला सकते हैं, सो दैट इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज. एंड आई रियली वांट टू ऐड ऑन टू दिस, क्योंकि सर ने जो बात बोली कि रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा यही हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि रिपोर्टिंग जो है वो सेंसिबल नहीं है. अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के सेम केस में देखोगे या किसी भी फार्मर के केस में देखोगे, एक दिन 2 दिन वो सेम वीडियो बार बार चलाया जाता है टीवी पे और बार बार सेम उसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात करी जाती है, हर एंगल से डिस्कशन होती है. लेकिन उस डिस्कशन के एंड पर ऐसी कभी कोई डिस्कशन नहीं होती कि जहाँ पर उसके सोल्यूशन सीख करने के लिए कोई डिस्कशन हो. हमेशा ये सोचा जाता है उन्होंने क्यों सुसाइड कर ली, क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल बना देती है, लेकिन कभी भी सोल्यूशंस के लिए हम डिस्कशन नहीं करते हैं. अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि हमारे पास अभी ये सबसे ज़्यादा हाइप पे केस है, इसी के बारे में मैं बोलूँगी. बहुत ज़्यादा आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम जब ये केस बहुत ज़्यादा मीडिया में आ गया था, आप विद इन द 1 वीक एंड मोर देन दैट इवन ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए जहाँ भी आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, चाहे आप फेसबुक खोल रहे हो, टिकटॉक खोल रहे हो या आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, कोई भी आप चीज़ खोल रहे हो, वहाँ पर हर जगह पे आपको सुशांत की कुछ सेंसिटिव फोटोग्राफ्स मिलेंगी जो आई थिंक वनरेबल एज ग्रुप जो है, जैसे आप सपोज करो अगर कोई अभी करंटली किसी डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स या इवन उसका कोई पास्ट में अटेम्प्ट भी रहा है, तो इस चीज़ें की तरीके की चीज़ें या रिपोर्टिंग वो न्यूज़ में देखता है या वो जब भी न्यूज़ को छोड़कर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच करता है, लाइक फ्रॉम टीवी टू फोन और फोन फ्रॉम टैब और वेयरएवर, हर जगह पे वही चीज दिखाई जा रही है. लेकिन हर जगह पे एक नेगेटिव थॉट ही सिर्फ दिखाया जा रहा है, कहीं पर भी पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं हो रहा. हर इंसान यही बात कर रहा है कि उससे सुसाइड कर ली, लेकिन उसके पीछे का रीजन एक ही टैग कर दिया बिकॉज सिंस ही वाज इन डिप्रेशन सो इट वाज द रियल कॉज. सो वी एज सिटीजन्स आई थिंक हम सब मिलकर वो डिप्रेशन के साथ एक जो स्टिग्मा अटैच है कि चाहे वो बाइपोलर हो, इट्स एनी काइंड ऑफ एनी कैटेगरी और एनी टाइप ऑफ डिप्रेशन, वो किसी भी सुसाइड को जस्टिफाई नहीं कर सकता. अगर वो डिप्रेशन भी है तो डजंट मीन कि वो डिप्रेशन में है तो उसको सुसाइड करना ही एक लास्ट सोल्यूशन रह जाता है.
आई थिंक अवेयरनेस जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टर्स और मीडिया के साथ साथ एज इन इस तरीके के वेलफेयर जो प्रोग्राम्स द वे यू गाइज आर डूइंग टुडे, इस तरीके के प्रोग्राम्स बहुत होने चाहिए, नॉट ओनली ऑन द फेसबुक, ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, एंड टुगेदर टेकिंग पैनलिस्ट, टेकिंग प्रोफेशनल्स लाइक दिस वी हैव टुडे. इस तरीके की डिस्कशन ज़्यादा होनी चाहिए रेदर देन हम अगर बार बार रिपोर्टिंग दिखाते हैं तो जो वनरेबल एज ग्रुप है या जो वनरेबल स्टेज पे हैं, जो लोग ऑलरेडी, जो इंसान अपनी बहुत स्ट्रगल कर रहा है डिप्रेशन के साथ या जो बहुत अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो सुसाइड को सुनकर शायद इजी मैकेनिज्म समझता है एस्केप करने के लिए. तो अगर हम उसको नेगेटिव की जगह और हम उसको रिपोर्टिंग पॉजिटिव वे में करेंगे, सी दिस इज नॉट गुड, वी शुड लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स, वी शुड टॉक, रेदर वी शुड फोकस ऑन द क्रिएटिंग द चेंज इन द सोसाइटी. You need to look for the reasons that why a person has committed suicide. We really need to be realistic, we need to talk, we need to discuss about it, and seeking professional help is also a add-on to this. So I think this is the best way to stop directly or indirectly also we are creating awareness somehow. Ma'am, I would like to add something upon this. मुझे ऐसा लगता है, just a minute. Okay, so मुझे ऐसा लगता है कि believe more in giving judgments rather than knowing the reasons. हमने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को डायरेक्टली नेपोटिज्म रिजल्ट दे दिया हमने कि उसकी डेथ हुई है नेपोटिज्म की वजह से, rather than knowing the actual reasons. हमने सलमान खान, करण जौहर को नेपोटिज्म किंग बोल दिया. हमने वो लोग जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, उन लोग के दिमाग में डाल दिया कि फील्ड में तो नेपोटिज्म है. जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में चल रहे होंगे वो लोग और ज्यादा डिप्रेशन में आ गए. So I think giving the judgment. इसमें भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी. नेपोटिज्म बहुत लोग बात कर रहे थे, मैंने मीडिया में बहुत लिखा कि यू आर नेपोटिस्ट, यू आर ब्लडी नेपोटिस्ट. बहुत सारे अब्यूजिव कमेंट्स मैंने बहुत पढ़े हैं. आई एम नॉट फेवरिंग एनी ऑफ द एक्टर, but nepotism, do you think that it is only existing in Bollywood? It is not there in the offices, it is not there in the school, it is everywhere. So when one is struggling on at the production house level or maybe at the as a artist level, everybody needs to stand against this nepotism. तो अगर अवेयरनेस होगा तो नेपोटिज्म अगर स्कूल में हो, बुलिंग हो, जिसको हम बुलिंग का रूप बोलते हैं स्कूल में, और कॉलेज में हम जिसे एंटी रैगिंग, आज लॉज बहुत अच्छे से बन चुके हैं, बट बिहाइंड द कर्टन्स आज भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते हैं. तो आई थिंक अवेयरनेस ही एक ऐसा टूल है, रिपोर्टिंग जो सेंसिबल अगर रिपोर्टिंग है, एज यू सेड विकास, की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें एक्चुअल में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और ये सब वो चीजें हैं जैसे आपने भी बोला. All right, so Tushar, you can ask your questions. Okay. Because just a point, Yeah. ma'am, I want to come in here and ask you, since you are coming directly from that field, aren't we pulling rather than just making or pushing towards a solution? Aren't we pulling down more people into that trap by all those trolling, by all those comments, by all those abuse? So aren't we pulling more people into the trap of depression rather than bringing up the solution? Because somebody who's not even involved and being alleged as somebody called the nepotism, or they are attached to somebody calling that it's a murder, it's a conspiracy, he's been murdered by a group of people who are the so-called godfather of the industry. So aren't they pulling down more people in the trap rather than just coming up with the solution? And just like the way you said that in the reporting itself, again what we are doing, we end up being conditioning. We end up doing that conditioning in the news report itself by inclining the factor that Amitabh Bachchan got up at this time. He just had a terrible night today. He ate this in the breakfast. He now wanted to eat this in the dinner. What are we exactly talking about? Yes, why ma'am. this much of footage? Like, so for these unconcerned issues, why aren't we talking about people who are dying of hunger simultaneously? Why are we talking about people who are afraid that they have caught this virus and they end up suiciding? Isn't it? They were not infected. Exactly. There have been cases. Exactly. There have been cases. आई टोटली अग्री विद यू. हमने बहुत बार रिपोर्टिंग में भी देखा है, जैसे मैं फार्मर्स का केस यहाँ पे लेना चाहूंगी. मैंने बहुत बार न्यूज रिपोर्ट्स में देखा है फार्मर्स के बारे में डिस्कशन होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी सुसाइड्स के बारे में डिस्कशन नहीं होती, लेकिन इफ यू क्लोजली लुक इनटू द पैनलिस्ट आर पॉलिटिशियंस.
Panelists right. are not psychologists. They are Right. not social workers. They are not the ones who are working for community and their people. So when Right. politics are into this, and when they are started, commenting about the farmers, definitely they will pass on the ball into one court to the other. They will. Nobody is going to take the. I mean, the nobody is wanting to realize that yes, it is because of us as a political fraternity. Nobody is going to take that. So I Yeah. think when there's these kind of discussion happening in the media also, there should be some people, those who are closely and at the very first step, they are relatable to all these issues. Yeah. When a farmer suicide, it's a farmer, not any person, a Manisha profile, ma'am, not his name. excuse me, ma'am. A request to all our Yeah, sure. guests. All right. All right. Yeah. So first of all, Satyendra sir, please check your mic connection. I think there's some issue. And then I would like to request all our guests to please speak in the mixed language, because I would like कि ज़्यादा से ज़्यादा audience के पास में पहुँचे. Sure, We are going more sure. into We'll English. keep All right. that in mind. I think bilingual is best. Yeah, bilingual Yeah. is best. Okay. All तो right. मतलब कंटिन्यूइंग टू दैट पॉइंट, बेसिकली जब एक फार्मर सुसाइड कर रहा है तो वो एक फार्मर, एक फ्रेटर्निटी, कोई प्रोफाइल, कोई पर्सन, कोई नेम सुसाइड नहीं कर रहा है. इट्स जस्ट बीन टैग फार्मर सुसाइड, अनदर सुसाइड. तो हम उसको एक जनरलाइज करके एक नोशन बना रहे हैं. वी आर एक्चुअली नॉर्मलाइजिंग सुसाइड्स. उसको एक ऐसा नॉर्मलसी दे रहे हैं कि हाँ यही तो सोल्यूशन है, यही तो एट द एंड सोल्यूशन है, कि यही तो होता है व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, दे एंड अप डूइंग सुसाइड. इट्स नॉर्मल. So why are we normalizing it? That's a surprising factor in this case. We are, rather than opposing the side, the opinion, कि nobody should have it in their option or their list of attempting suicide. हम उसको करने के अलावा we are just after normalizing it कि वो इंसान तो suicide करेगा ही, but आप थोड़े aware हो जाइए. What are you exactly portraying? तो मेरे ख्याल से कि sensitivity should be at every level, be it reporting, be it choosing the kind of media you are opting for, be it the kind of photos that we post on our, be it Facebook pages, be it Instagram, the captions. So we should be sensitized about this issue, that it's not a normalcy thing. We should not generalize suicide being the option. It should be taken out from the options, isn't it, ma'am? Yeah, exactly, ma'am, exactly. I really want to add on this here, because since I have done my research paper on effects of internet and in its addiction and social networking side addiction on men and women, what we have seen, the conclusion and the result of the data gathered by us, we have seen that men are more prone to the crimes which happen in the virtual world. And why? Because फर्स्ट ऑफ ऑल अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि मेंस अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन करेंगे. कोई मेंस को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ओपनली आके डिस्कस करेंगे. तो लड़के रो नहीं सकते. Exactly. तो वो एक जो स्टिग्मा है सोसाइटी के साथ, आई थिंक वो बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे जो मेल स्ट्रेटा भी है, जो हमारा पोर्शन है मेल पॉपुलेशन का, वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं. और उसकी वजह भी बहुत सारी हैं. उसके अंदर आप देखोगे जनरली एक स्टेप बैक रहता है वुमेन्स के लिए ऑनलाइन चैटिंग और ऐसी इस तरीके की चीजें करने में. तो सिर्फ ये नहीं है कि सुसाइड का रीजन सिर्फ फार्मर है या कोई पर्सनल इशू है. जैसे हमने बहुत स्टार्टिंग में एक केस लिया था कि लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लो एकेडमिक ग्रेड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं. तो फर्स्ट स्टेप वही है जहां पर हम मेन और वुमेन को आज हम बोलते हैं कि सब लोग इक्वल हैं. बट आई थिंक मेंटल हेल्थ कंसर्न के डिस्कशन के लिए या ओपन अप होने के लिए अभी भी मेंस को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है. अगर थोड़ी सी चीज या डांट से या किसी भी बात से अगर वुमेन रो देती है तो शायद 10 लोग सिंपैथाइज करने आ जाएंगे. बट अगर कोई मैन अगर क्राई करता है तो उसको एक स्टिग्मेटाइजेशन सोसाइटी से लिया जाता है दैट यू आर नॉट बोल्ड इनफ. तो आई थिंक सोसाइटी में बॉलीवुड नो मर्द को दर्द नहीं होता. We have it not this way. Okay, so we have with us Gauri. Yeah. Okay, so we have with us Gauri. She would like to ask a question. All right, Gauri. Okay. Hi everyone. So first Hello, of all, Gauri. I would like to thank the organizers and the speakers for taking such a beautiful initiative. I want to share my views. Actually, I don't want to ask any question. I just want to share my views, if you allow me to. Yeah, No, go for ahead. sure. Yeah, go ahead, Okay. Gauri. So जैसा मैंने पर्सनली मैंने जो देखा, समझा और सुना, सुसाइड के कुछ फैक्टर्स होते हैं. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं और वो इतनी बड़ी चीज़ तक ले जाती हैं, जैसे कि सुसाइड, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़,
फैमिली प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो अगर हम फियर ऑफ फेलियर की बात करें, अगर हम सक्सेस की बात करें, तो लोगों को लगता है, लाइक हम में से जो भी लोग सेशन में हैं उनको भी लगता होगा कि आई एम नॉट इनफ, यू आर नॉट इनफ, हम किसी चीज़ में फेल कर गए तो हम काफ़ी नहीं हैं. हमारे लिए हर किसी के सक्सेस की अलग डेफिनेशन होती है, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमें लगता है हम वहाँ फेल कर गए. और अगर हम हो गए, हमारे लिए सपोज एक चीज़ है और हम उसके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो गए, तो हम तो खुश हैं, लेकिन सोसाइटी अगर खुश नहीं है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, हम काफ़ी नहीं हैं. सोसाइटी की बातें हमें बहुत अफेक्ट कर जाती हैं. और ये अभी छोटी बात लग रही होगी, लेकिन जो ये इंसान सफ़र करता है उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, और एंड में वो सुसाइड जाके कर लेता है. तो उस पर मुझे ये, और कंपटीशन बहुत है हमारी सोसाइटी में. स्कूल्स में देखेंगे ना, हम अपने बच्चों को कह देते हैं, हमारे 99 भी आ गए ना बच्चे के, हम कह देंगे यार 100 आ जाते तो अच्छा होता. 100 आ गए तो नंबर आ गए, लेकिन नॉलेज नहीं है. उसका बच्चा अच्छा कर रहा है, और बिजनेस में भी वो आगे पहुंच गया. स्टार्ट हमने सेम टाइम पर करा, लेकिन वो हमसे आगे पहुंच गया. तो कंपटीशन बहुत है. तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से रिलेट करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक कार दो दिल्ली से चली, आगरा जाना है, हाईवे पे जा रही है. एक है BMW, एक है मारुति. दोनों सेम टाइम पर चली, दोनों की डेस्टिनेशंस भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगी. चाहे दोनों के ड्राइवर्स के अंदर सेम वो है कि हमें सेम उससे जाना है, एनर्जी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगी. तो इन दोनों के बीच के कंपैरिजन करने का कोई बेस ही नहीं रहता है, क्योंकि दोनों आपस में डिफरेंट है. और अगर इसको हम अपनी इस इक्वेशन को हम अपनी लाइफ में फिट कर दें, ये दूसरा इंसान है और एक, हाँ ठीक है, वो हम दोनों सेम टाइम पर चले एक गोल की तरफ. मैं लेट पहुंची, वो थोड़ा पहले पहुंच गया. इसमें हम कंपेयर करते हैं क्यों है? I would like to add something upon this. It's हाँ not जी, about comparing, yeah. but being an automobile journalist, आप मारुति को भी ट्यून कर सकते हो. जस्ट लाइक एक बच्चा अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को आगे बढ़ा के वो BMW के लेवल पे पहुंच सकता है. Exactly, and we have this technique, behavior modification. I think ma'am will agree with me. We have this technique that behavior modification is there. I would really want to add on here, Gauri, since you are talking about children from school and college population, definitely I think more than creating awareness for students, we should create awareness for, first of all, for parents. As in a school educator, I can straight away say to this, because मैंने बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को देखा है, बच्चे साइंस नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड लेना चाह रहे हैं, बट स्टिल पेरेंट्स के प्रेशर में आके दे ऑप्टेड फॉर समथिंग एल्स, सम अनदर काइंड ऑफ अ स्ट्रीम which maybe they are not excel into, which maybe they are interested into. So सबसे बड़ी बात जो हमारे में भी हम बोलते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट प्लान अगर शुरू करते हैं ना, तो हमारे लिए अगर कोई बच्चा आता है तो हमारे लिए बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. तो फैमिली थेरेपी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो फैमिली काउंसलिंग है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप देखोगे 60 और 80% रेशो मैटर नहीं करता, मैटर करता है पेरेंट्स का माइंड सेट. 60% वाले के पेरेंट्स भी खुश हो सकते हैं जितने कि 90 और 99% वाले के, लेकिन सिर्फ वो एक पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है. एक्चुअली में पेरेंट्स के लिए ना वो सक्सेस क्राइटेरिया ही डिफरेंट है. उनके अकॉर्डिंगली अगर आपकी 99% आए, दैट मीन्स इट्स अ फॉर श्योर, इट्स काइंड ऑफ आपको पूरा अश्योरेंस मिल गया कि आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्टली लाइफ में पूरा सेटल होने वाला है, और अच्छी खासा उसका 10 और 10+ पर एनम का पे पैकेज होने वाला है. तो आई थिंक शायद क्राइटेरिया जो सक्सेस का है वो पेरेंट्स को भी बताने की हमें ज़रूरत है. मैंने एक कोट पढ़ा था FB पर, हिंदी में ही है, मैं यहाँ पे प्लीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि रिजल्ट्स अभी थोड़े दिन पहले हमारे 10th और 12th के रिजल्ट्स भी आए हैं. सिंस आई एम सीनियर टीचर, सो आई हैव टू डील विद सीनियर स्टूडेंट्स. मैं वो भी देखती हूँ, और एज साइकोलॉजिस्ट मैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखती हूँ. एक कोट था वहाँ पर FB में कि खराब रिजल्ट देखकर कोई भी गलत कदम मत उठाना दोस्तों, मार्कशीट तो बस एक कागज का टुकड़ा है और तुम किसी के जिगर के टुकड़े हो. तो ये बहुत बड़ी चीज है. आई थिंक इस तरीके की कोट्स, इस तरीके के अवेयरनेस हमें सच में जरूरत है. If I may add to this, may I? Yeah, sure ma'am. Yeah, teenagers की बात अगर हम करें, जो मैम ने अभी बोला है रिजल्ट्स के बारे में, आज ही हम लोग घर पे यही बात कर रहे थे कि थैंक गॉड इस बार कोरोना की वजह से जो रिजल्ट्स आउट हुए हैं उसके बारे में बच्चों को काफ़ी हद तक पता था
कि क्या होने वाला है, बिकॉज सम ऑफ देम हैड नॉट अपीयर्ड इन 4 सब्जेक्ट्स, किसी ने 2 सब्जेक्ट्स नहीं लिए, और मार्क्स इंटरनल असेसमेंट्स के बारे में हो गया। कुछ एक न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई थी जिसमें बच्चों से पूछ रहे थे, तो बच्चों ने बोला कि हाँ बोर्ड के कुछ पेपर्स हमारे अच्छे नहीं हुए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी इन वन वे कि हमारे इंटरनल असेसमेंट्स बहुत अच्छे हुए थे, उसके बेसिस में हमको मार्क्स दे दिए जाएंगे। Till now, thank God, we haven't yet heard of any school student या किसी teenager को suicide करते हुए. Otherwise, every year, after, especially after class 10th and 12th results are out, we see a whole lot of students, young students, जिनके की जिंदगी काफी bright हो सकती थी, they commit suicide. The main reason is पीयर प्रेशर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनका जो दोस्त है ही इज गेटिंग 90% और उसका शायद स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फेलिसिटेट किया जा रहा है, मैं भी कर सकता था पर मेरा हो नहीं पाया, तो एक बहुत प्रेशर में आ जाता है। पेरेंट्स अलग होते हैं, पेरेंट्स कीप ऑन सेइंग कि बेटा देख तेरा दोस्त उसने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो नहीं किया था, तू कहाँ रह गया, वो कहाँ चला गया। फैमिली, अरे चिंटू के जो है, चिंटू का घर जो है कोई, उसको तो 99% मिला, अरे तुम्हारे बच्चे को तो सिर्फ 60% मिला। तो पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी वो उसी जाल में फंसे शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करते रह जाते हैं, वो अपने अपने फैमिली मेंबर्स में ही वो कंपेयर करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, एंड एज यूजुअल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि सुसाइड कर लो, इट्स द ईजीएस्ट थिंग। Though suicide is not at all easy, it's a very painful thing to happen because you are killing yourself. एक life को unnaturally ख़त्म करना, it's a big deal. Doctors भी बोलते हैं like when the life is coming out of you, it's a big pain and trauma. तो एक छोटा बच्चा जो कि शायद हाथ कट जाने पे पूरा घर सर पे उठा लेता है, वो अगर सुसाइड कर रहा है, मतलब वो उस पेन से बाहर निकल चुका है, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद इट। क्यों? मेन रीजन उसके पेरेंट्स होते हैं। जैसे मैम ने कहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, येस आई डू एग्री टू दिस। पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एक्चुअली, क्योंकि इफ वी आर नॉट केयरिंग अबाउट द आउटसाइडर्स, कम से कम फैमिली में उस बच्चे को तो सपोर्ट मिले, बोले बेटा तुमने अपने हिसाब से मेहनत किया है, बाकी जो रिजल्ट आया है नहीं आया है वो that's a different story. You the entire life, the entire thing is right आपके सामने है, आप उसको आगे भी सही कर सकते हो। The thing is, ये जब उसके दिमाग में आता है थोड़ा सा भी थॉट, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसीज कुछ होने लगते हैं, द बच्चा बिकम्स इरिटेटेड, वो कुछ चीज़ें जो है अपने दोस्तों में बांटने लगता है और अजीब अजीब बातें करता है, एंड दे टेंड टू से कि गुड बाय फॉर एवर। वो नोट्स लिखता है, कहीं पे कुछ स्क्रिबल करता है, इवन फेसबुक ग्रुप्स में कुछ कुछ वो डालता रहता है, एंड द काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स दे शेयर, that those are hints to us parents and to the counselors and the therapists, even to the school teachers, कि कुछ कहीं पे गड़बड़ है। बस जो कहा जाता है निप एट द बड, हमें एज मैच्योर इंडिविजुअल्स वो निप एट द बड करना है कि शुरू होने से पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दें। और बच्चे को हमेशा ये हमको एहसास दिलाना है और हमें कांस्टेंट काउंसलिंग के थ्रू मोटिवेट करना है, और ये अश्योरेंस उनके दिमाग में डालते रहना है कि यू आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, योर अचीवमेंट, योर लाइफ, your career, your future is not that important. आप ठीक हो, till the time you are okay, you are happy, you are safe, we are happy with you. It's not the result क्या है, because if we show them PGs में और after post graduation the kind of job people get, जो भी successful होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर हो या वो थ्रू आउट 99 परसेंटाइल वाले हो। If we look at people, those who are getting a good average of 60-70%, वो भी क्यों बोले, थोड़ा नीचे भी अगर हम जाते हैं 58-59% वाले भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। I've seen that in my life. They are right now presidents and vice presidents of good renowned company. अगर वो लोग कर सकते हैं तो एक बच्चे का क्लास 12 का रिजल्ट या 10th का रिजल्ट कहाँ मायने रखता है। ये चीज़ हमें बच्चे के अंदर ये चीज़ अश्योरेंस उसको देना है, तो टीनेजर्स को डील करना जितना डिफिकल्ट होता है उतना आसान भी होता है। सो वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड दैट अश्योरेंस। अवेयरनेस से ज़्यादा अश्योरेंस उनको देना है कि बेटा डांट नहीं पड़ेगी, हम तुमको मारेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकाल देंगे, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिससे कि बिकॉज इफ यू आर सेफ यू आर विथ अस, इफ नॉट
St. Stephen's, then some other college. If not I am Ahmedabad, then I am Indore या कोई और बहुत decent colleges हैं. ज़रूरी नहीं कि I am Ahmedabad का ही बच्चा मतलब I'm not taking any name as such. I'm just giving. All right, ma'am. Sorry to stop you, but we are getting a lots of questions from our audience. I think Yeah. we should put on them also. All right. So So now, Tushar, I- yeah. So there is a question for sir. Sir, basically, one of our audience asked that. But what if someone is not even trying to understand what a gift of life is? मतलब जो लाइफ हमें मिली है, जो भगवान ने हमें एक लाइफ दी है, अगर हम ये लोग समझने में ही मतलब हमें समझ नहीं आता कि एक लाइफ जो है वो एक गिफ्ट है हमारे लिए, तो अगर हम ये समझने में ही नाकाम हो जाते हैं, तो सर इस पे आपके क्या व्यूज है कि हमें किस तरह अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में एक ऑप्टिमिज्म के साथ डील करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक ज़्यादातर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, वेयर इन एवरीबडी इज हैविंग अ मैकेनिकल काइंड ऑफ रूटीन. sir, there's some issue with your mic. Hello. Sitendra sir, can you hear us? अगर आप Hello. जान सर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है सर आपके कनेक्शन के साथ सर. All right. So let's pass this question upon to Manisha ma'am. uh, All right, Tushar, can you repeat the question? Yeah. Sure. So the I meanwhile, and then sir can continue. yeah, Yeah. sure ma'am. So as just you talked about, ki how do we make them realize that the bigger gift, the thing that is ultimate. Just a few words back, if you go back to the situation and just the example that ma'am quoted, कि एक वो रिवॉर्ड देना, उस बच्चे को प्रेज करना जिसने वो एक सर्टेन जो सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक परसेंटाइल है या फिर कोई एक अचीवमेंट है वो किया है. आई गेस रिवॉर्ड्स के साथ साथ वो काउंसलिंग करना हाँ. जो हु कुड नॉट मेक इट थ्रू, वो बहुत Counselling ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सिर्फ रिवॉर्ड का जो एक फैशन है, एक रिवॉर्डिंग फैशन है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमें काउंसलिंग सेशन, गाइडिंग सेशन, एक कॉन्सोलेशन सेशन जो साइमल्टेनियसली रन करना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है. क्योंकि आप एक रिवॉर्ड करके किसी बच्चे में एक जेलसी क्रिएट कर रहे हो, एक लैक ऑफ अचीविंग समथिंग वो क्रिएट कर रहे हो. और जब वो सेंस क्रिएट होता है ना, तो उसके साथ मल्टीपल जो चीजें हैं वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रॉम देन एंड देयर मोमेंट. तो रिवॉर्ड कल्चर के साथ साथ एक काउंसलिंग कल्चर भी हमारी सोसाइटी में बड़ा नेचुरली अब बाय नाउ, बिकॉज इट्स इनफ एंड वी शुड नो बाय इट्स एक्सटेंट कि देयर इज नथिंग बिगर देन लाइफ. कुछ भी है, बी इट एनी एकेडमिक सक्सेस, बी इट योर बिजनेस सक्सेस, बी इट एनीथिंग, नथिंग इज बिगर देन योर लाइफ. दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट you should be sticking to. All right, ma'am. Okay, so we have got a very good question from Ashita Magon. I think psychology should not only be a subject which people can opt in their 11th and 12th. It should be made mandatory for all. People are vulnerable at the young age too. Schools have so-called counselor to help people, but are they well equipped? One should also focus on this aspect as well. So in our last session, we discussed that सेक्स एजुकेशन भी हमें छोटी क्लासेस से पढ़ा देना चाहिए. उसके साथ साथ आई थिंक कि शायद हमें काउंसलिंग भी बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ा देना स्टार्ट कर देना चाहिए. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Can I take this question? Sure ma'am, sure. ma'am. काउंसलिंग देखिए बहुत डिफरेंस है कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं या जेंडर सेंसिटाइज कर रहे हैं. Wherein we are telling them what is a male and what is a female, and male and female are equal, how they are equal and how they are not equal. So that, and taking up counseling or psychology as a subject to be done in class 11th and 12th, it's entirely different, because a trained psychologist would know what to talk and what not to talk with the candidate. बच्चा खुद जब डिस्ट्रेस में आ जाता है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर, वो साइकोलॉजी के कौन से नॉलेज को यूज करते हुए अपने आप को ठीक करेगा? आई डाउट दैट. यस, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. ये आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में भी मिलता है और साइंस ग्रुप में भी मिलता है. आजकल मैं ये भी ट्रेंड देख रही हूँ, बहुत सारे लोग कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स के साथ एक सब्जेक्ट ले लेते हैं
हिंदी की जगह या मैथ्स की जगह वो लोग दे टेक अप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. It's a very good thing. They come to know about what are the tools, what are the brain parts, क्या होता है, some terms and all. वो class 12 तक का ठीक है. But what I think is teaching them psychology would not help at all in stopping the problems as we are discussing here. Rather, the number of counselors or the number of psychologists should be increased in schools. अभी जहाँ 50 बच्चों के बीच में एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो कितनी बार 50 बच्चों से हफ्ते में वो मिल पाता होगा या मिल पाती होगी, और उनके इश्यूज को ऐसा नहीं होता हाँ बेटा तेरा ये हो गया चलो ठीक है, डोंट बी सैड, ये बोलने से बच्चा सैड नहीं होगा. इट्स नॉट दैट. 1-to-1 सेशन होना चाहिए, लाइक द काइंड ऑफ सेशन दैट वी हैव विद द स्टूडेंट्स जो कि डिस्ट्रेस में होते हैं या इवन स्ट्रीम डिसाइड करने में लेते हैं. वी टेक अराउंड 1 to 2 hours एक बच्चे को समझाने में. तो उस तरह का, उस लेवल का, उस इंटेंसिटी से अगर हम बच्चों को गाइड करें या काउंसिल करें या अवेयरनेस दें, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प. बट यस, taking up psychology as a subject, I still doubt कि उससे बच्चों को as such अपने आप को ठीक करने में या अपना मेंटल कंडीशन ठीक करने में कोई मदद होगा कि नहीं. मैम वुड बी बेटर पर्सन टू टेल बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ साइकोलॉजिस्ट. एंड प्रोबेबली सत्येंद्र जी अभी वापस आ गए हैं. आई थिंक ही शुड आल्सो गिव सम. Tushar has another question for him. Sir, I think मैम यू आर राइट समवेयर, बिकॉज अगर साइकोलॉजी पढ़ने से ही सिर्फ सारी काउंसलिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है प्रोफेशनलिज्म, एक और क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे एथिक्स आ जाते हैं. तो आई थिंक स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ने से ज़्यादा या काउंसलिंग के टेक्निक डिस्कशन से ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट ज़रूर हो सकती है. हाँ, बट अगैन देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर सबके पास साइकोलॉजी है तो सभी लोग उसको उसी तरीके से समझेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्योंकि हाँ, सब लोग साइकोलॉजी को आज भी, अगर मैं बोलूँ, अगर स्कूल के बारे में बात करूँ, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल एंड टीचर ऑल्सो, मैं दोनों चीज़ें देखती हूँ कि चाहे वो पेशेंट लेवल पे अगर हमारे क्लिनिक में कुछ आते हैं या स्टूडेंट्स भी हैं, मैम ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसीलिए हम लेते हैं. तो एक ये बहुत बड़ा वो है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट की वजह से ले जाता है. दूसरा चीज, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैम आप बहुत प्यार से बात करते हो, वो तो ठीक है, हमारा प्रोफेशन का वो एथिक्स है, डेफिनेटली हमें फॉलो करना है. बट सिर्फ हम यही नहीं है, क्योंकि अच्छे से बात करना, एम्पैथी से बात करने के अलावा हमारे पास और बहुत कुछ है बच्चों को देने के लिए. आई थिंक काउंसलिंग अगर हम ये बहुत ईजी एस्पेक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन ऑफ द फील्ड जो है शायद वो खत्म हो जाएगा. और आज मैं देख रही हूँ सूडो साइकोलॉजिस्ट बहुत है हमारी सोसाइटी में. हर कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, एक दो गाइडेंस दे दिया एंड दे थिंक दैट वी आर साइकोलॉजिस्ट. तो कहीं ना कहीं एक जो ऑथेंटिकेशन ऑफ द फील्ड है, प्रोफेशनलिज्म है, जहाँ डिग्रीज आती हैं, जहाँ पे क्लिनिकल जजमेंट्स आती हैं जो आपको बहुत ईयर्स एंड ईयर्स प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलती है, तो उसका कहीं ना कहीं जो लेवल है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा अगर हम बहुत इजीली एक सब्जेक्ट को अवेलेबल कर देते हैं. सेम चीज़ से मैं इसी का आंसर लेना चाहूँगी, बिकॉज आई एम guest lecturer also in different universities. I have seen कि बहुत सारी open universities जो हैं साइकोलॉजी डिग्रीज करवाती हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट द पॉइंट इज दिस कि जहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑफ कंटेंट है, ऑथेंटिकेशन ऑफ फील्ड का नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन और जिस तरीके से हम पार्ट टाइम कोर्सेज कराते हैं उसमें लेवल और जो एक्सप्रेशन है जितना भी फील्ड का वो खत्म हो जाता है. तो अगर हम एक्चुअली में अगर हम किसी भी काउंसलिंग या किसी भी सब्जेक्ट को बचाना चाहते हैं, उससे पहले हमें सब्जेक्ट की नॉलेज को थोड़ा प्रोफेशनल करना पड़ेगा. अगर इतना इजीली हम अवेलेबल कर देंगे, यस आई एग्री, awareness is very very important, that is the reason why we all are here, but अगर हम सब्जेक्ट को या डिसिप्लिन को इतना इजीली एक्सेसिबल कर देंगे तो आई थिंक जो उसका मोटिव है, जो जिसकी ऑथेंटिकेशन है वो कम खत्म हो जाएगी. और सूडो साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में बहुत होंगे, और ऐसे ही जैसे हम कहते हैं झोला चाप बहुत डॉक्टरों के सेंटर खुले हुए हैं, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के भी खुल जाएंगे. तो आई थिंक उससे बेटर है. ओके मैम. मैम, सो देयर इज अ ऑडियंस जिन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है. उन्होंने कहा बेसिकली मैम आजकल ट्रेंड के अंदर है कि जो कॉपी कैट सुसाइड होता है, कॉपी कैट सुसाइड मतलब कि देखा देखी किसी को, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के बाद उनका एक फैन था बिहार के अंदर ही, उन्होंने भी अपना सुसाइड कर लिया. तो हम इस पे आपके क्या व्यूज हैं कि इंस्पिरेशन जो मिलती है लोगों को एक पॉजिटिव वे
में लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप सुसाइड इज नेवर द लास्ट ऑप्शन। ये हम सबको पता है कि एक लाइफ के अंदर जितने मर्जी स्ट्रगल्स हो, जितनी मर्जी ऐसी ऐसी दिक्कतें आए, बट सुसाइड एक लास्ट ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल सुसाइड को कॉपी करना, ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखो कहीं पर मैंने, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन तुषार, मैंने एक चीज़, बहुत चीज़ें देखी हैं कि बहुत लोग ना रिपोर्टिंग को बार बार रिवाइज करके देखते हैं। जैसे हमने पहले एक पॉइंट लिया कि रिपोर्टिंग सेंसिबल होनी चाहिए। कभी ना हम लोग सिर्फ कॉपी करने में रहते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले इंसान ने अगर सुसाइड बाय मिस्टेक कर भी लिया कमिट, तो उसके कंडीशंस क्या थी। हम विदाउट मैचिंग द कंडीशन ऑफ आवर्स विद दैट पर्टिकुलर पर्सन हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। हो सकता है उसकी कंडीशंस हमसे वर्स हो सकता है उसकी कंडीशन को वो मैनेज नहीं कर पाया हो सकता है वो प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं कर पाया, हो सकता है वो उस टाइम पे थोड़ा रियलिस्टिक नहीं हो पाया, हो सकता है उसकी कंडीशंस इतनी ब्लॉक थी कि वो किसी की तरफ रीच नहीं कर पाया। तो आई थिंक अगर हमें रियलिस्टिक होंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो अगर स्टैटिस्टिक्स को भी आप देखोगे, जितने भी सुसाइडल स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया के, वो मेल फीमेल फार्मर्स स्टूडेंट सबसे अलग अलग तरीके से आते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स को चेंज करना है वो कौन करेगा? वो हम ही तो करेंगे। स्टैटिस्टिक बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम उस स्टैटिस्टिक को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, कभी भी उस स्टैटिस्टिक्स को कम करने के लिए कोई बात नहीं कर रहे। अगर हम चाहते हैं कि लिटरली हमारे बच्चा, जो मेरा नोन कोई स्टूडेंट है या कोई नोन मेरा पर्सन है, वो उस स्टैटिस्टिक्स में नेट 10 साल 5 साल या 2 साल के बाद ऐड ना हो जाए, तो बेटर है कि कहीं ना कहीं रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव और लॉजिकल जो माइंड सेट है उसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखती हूँ जैसे ma'am, sorry but excuse me, ma'am, sorry but I have to stop you in between. The live stream is losing its quality. I think we have exceeded the time. Okay, so I think इस टॉपिक को हमें ना यहाँ पे एक बार एंड करना चाहिए। And I think जो हमें एक कंक्लूजन मिला है, that is it's all about speaking. हमें बात करनी जरूरी है बहुत, ठीक है। So अगर बात करेंगे then that would be much better. बात करेंगे that would be much better, या हाँ sure. So basically the thing is that कि एक पूरा एक सिनेरियो हमारे सामने एक प्रेजेंट हुआ है, जिसके अंदर ऑडियंस के सामने हमने ये प्रेजेंट किया है कि सुसाइड एक लास्ट ऑप्शन नहीं है किसी भी चीज का। तो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, टेकिंग थिंग्स इन अ मोर पॉजिटिव वे, ये हम सबके लिए जरूरी है। हमके खुल के बात करनी चाहिए। बेशक जरूरी नहीं हम अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ हम कंफर्टेबल है बात करने के लिए, तो हमें करनी चाहिए। अपने अंदर के थॉट्स को बाहर रखना चाहिए ताकि ये कोई चीज हमारे ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़े। सो आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच कि आप सबने यहाँ पे अपना प्रेशियस टाइम दिया, हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा मैसेज छोड़ा। और इसी तरह माय स्टोरी के साथ वापस आएंगे नेक्स्ट वीक एक अलग टॉपिक के साथ, ताकि हम सबको एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकें। So thank you so much for joining us, and good getting us photo and good getting us. That's all the best people for the forwarding session. All right. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot, everyone. Thank you so much.